Okay, so let us start with our session, group discussion session. And let me give you the topic for GD. Work-life balance is a myth. Please write this topic. Work-life balance is a myth. Work-life balance is a myth. Work-life balance is a myth. That is a topic. I give you 2-3 minutes and then we start. Okay, so friends, now please unmute each one of you. And since it is a group discussion, you need to participate smoothly. You need not to crisscross. You need not to cut anybody unnecessary. Talk properly so that everybody gets chance. And you have to practice. You have to listen to others. You have to speak, and you have to come out with the relevant points. And if you want to conclude, which is the easiest thing, keep jotting down the points from the very beginning. And when the time comes, you conclude. Now, please go ahead and initiate your discussion. Good morning, friends. Good morning, My name is everyone. Satyasundar Sahu, and I'm glad that I got the opportunity to start the discussion. So today's topic of discussion is work-life balance is a myth. So it is, I believe that it is a relevant topic for every personal. Nowadays, human life become more stressful due to the workload pressure. So there is a question that we need to balance the work and life, and so we need to find the answer behind this. On this note, now I'm inviting you all to participate in the discussion. Please kindly share your valuable points so that we can Yes, conclude. I agree to Satya. So, So, in my point of view, work-life balance depends on person ability to problem, how he manages the problem and how he plans his targets. So, it is not a very difficult task to maintain a work-life balance for me. Yes, I agree with Satya Yes, and I agree Ranjan. with you. According, It also depends on the job type of job also, and sometimes we have to leave our hometown. We have to job apart from our home, and these problems are there. yes, Yes, actually, it I is also same. agree with the definition that my friend has given about the work-life balance. But I think the title is very justified that the work-life balance is a myth nowadays because today people are living a very hectic lifestyle. Like the Yes, person who is doing a 9 to 5 job still end up doing the overtime or work on the weekends, जिसमें उन्हें benefit और कुछ bonus भी नहीं मिलता है. Other than that, there are companies there where the time is not very limited, like they don't give कि हमें इस टाइम से इस टाइम तक काम करना है. The like in sales profession the job is of 24 hours, like in call centers also the job timing is not very yes. So specified. it is So I yes, I think agree with Ganesh. But according to that the me, time is the only 8 hours, but despite is actually the human actually the professionals are busy for the entire day. They have to plan for the next day. That's why we need. I think I am against the statement that it is not a myth. Yes, I am agree with Satya because company gives us the timetable. We are well known in advance that how our next week is going to be. So it's our responsibility to plan our day because work-life balance is very important. It helps to maintain our mental health. So we need to find a solution for it. Not we should blame the company. yes, I agree with Ranjan. The work-life balance should be a important topic because if in every point of life, if we don't balance our life, then it will lead to divorce and even overwork leads to death in some places. Like many doctors due to overwork died, and even some people do extra gym, which is like kind of a work, and people died in gyms. And so work-life balance. Will give you a peaceful mind and will help to get rid of depression. Yes. so And मेरा ये I क्वेश्चन think है the कि Harshit वर्क Yes, लाइफ Harshit बैलेंस में हमें agree कोई to वर्क the हम कर रहे हैं तो statement उसमें हमको फैमिली that का भी हमको ध्यान रखना होता है. फैमिली मेंबर्स एंड अदर्स आल्सो, सो mental health also are there. So these are the various issues I'm with so also that. I agree think with you guys because I हम also लोग want to हम लोग add अगर one of my फैमिली point that work-life balance is really important.
as all of you have said that it helps us to relieve stress and it's very important to give time to our family also. But one part which I want to add that कि जैसे अगर कोई स्टार्टअप स्टार्ट करता है तो उस केस में जो स्टार्टअप फाउंडर है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम और हर टू गिव हिज कंप्लीट टाइम to the startup or business only. As we have seen the interviews of many founders also, they said that they raise their company as their baby only. As we have also seen the speech of Mr. Narayan Murthy also, he also said that while building Infosys, actually he contributed whole of his time to Infosys and his wife was managing his family. So I Yes, I think agree. Yes, I startup also type agree की with job Varsha में because according to me, work-life balance is not a one man work. Like it is a family. Like family Yes. should also support the work of us, and even sometimes the work culture or the company should also support so that the man can the person should not get in depression. So at last Yes. the point is like we should get a peaceful mind. If we are peaceful, we are happy, then only we can make happy work culture and make happy family. So Yes, I think absolutely. we We all should agree enjoy that our in one more point doing a कि work-life mind balance and एक many get people think बहुत work say जरूरी है कि मुझे job लगता है government चाहे job में good in life life in balance life होती है we या are फिर जो we should engage our some mind are in earning different more things like and our some are family. earning less, If we but spend our this time with family and does not mean that everyone is stable. The one who yeah may earn more might not be the one who is stable and who is not. yeah actually I I think knew many people that that thinks about जैसे कि that the हम लोगों ने government डिस्कस so किया है कि government friends job वर्क they लाइफ बैलेंस have करने the के लिए work life प्लानिंग balance बहुत ज्यादा and the जरूरी other है private jobs तो no मुझे work लगता है life कि balance इसका मुझे मतलब लगता ये है नहीं मैं है एक कि इसका गवर्नमेंट जॉब में वर्क लाइफ एग्जांपल बैलेंस होती ही होगी ये डिपेंड ऑन टाइप ऑफ द जॉब आल्सो सो ओके जैसे कि हम लोग ने भी डिस्कस किया है हम इस पॉइंट पे तो अग्री कर रहे हैं कि प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है हर एंड से टू फ्रॉम द पर्सन्स एंड आल्सो फ्रॉम द फैमिली आल्सो एंड फॉर द कंपनी आल्सो वन ऑफ द एग्जांपल दैट आई एम गोइंग टू टेक नाउ अभी हम लोग ने एक बायजूस का नाम सुना होगा बायजूस एड का एजुकेशन सेक्टर की बहुत बड़ी कंपनी थी वो तो दैट इज नॉट डूइंग वेरी वेल बिकॉज ऑफ द वर्क लाइफ बैलेंस दैट एम्प्लॉयज आर गोइंग थ्रू राइट नाउ तो उनकी शिकायत की वजह से द कंपनीज डाउनफॉल इज आल्सो हैपनिंग तो क्योंकि दे आर ओवरबर्डनिंग द एम्प्लॉयज and they are doing overtime without the bonuses this kind of things that happens forcefully जिसमें लोगों के पास ऑप्शन नहीं रहता है प्लानिंग का that is a very difficult thing to manage I Yes, think I'm I also agree agree with with you Pranay because I because also according to one me, this will lead only example to state. the vanishing of We company know and that in this South leads to yes Korea like and person Japan. to change the job. So work-life balance in company is a part of a company also. Keep Yeah, company should actually, balance. yeah, They I are now want to, also yes saying that also yeah, the I'm in agree जैसे कि in कंपनी Japan के Varsha. and इनिशिएटिव South वो तो Korea, बहुत अच्छे the तरीके से कर सकता है जैसे कि हम जियो की अगर बात करें जियो आईटी जो सेक्टर है उनमें कुछ फ्लेक्सिबल टाइमिंग नहीं है मतलब वो कहते हैं कि यू हैव टू डू एन 8 आवर जॉब बट किस टाइम से स्टार्ट होगा किस टाइम से एंड होगा वो डिसाइड नहीं करते हैं 24 आवर्स उनका ऑफिस खुला रहता है एंड दे आर अलाउड टू गो इन एंड आउट उन्हें बस 8 आवर्स की शिफ्ट करनी होती है दिस काइंड ऑफ वर्क कल्चर Yeah, इज actually, बेटर I फॉर I also agree like with to add yeah one Pranay. point I that yeah I think agree Pranay, with you My Pranay according point जैसे to कि of me, view, the एक what कंपनी one हो my रहा है of जैसे experience कि till now is Larsen that, and Trebo there are also the same problem they have the same problem Larsen and Trebo they are the construction site working there on there and वहाँ पे कोई due जरूरी to नहीं है कि वहाँ पे आप कब जाते हो कब वहाँ पे की शिफ्ट खत्म होती है देयर इज friends नो also due to रेस्ट्रिक्शन these but things. And Actually, we Pranay have has also said I a seen good also that point. want to add we have one also point seen that in कि Japan जैसे and all of South you Korea have like said countries, that they have this more जैसे future. in some of the companies which one of my friend told that about Jio and L&T वहाँ पे ओवर टाइम वाला जो सिस्टम है वो नहीं है. If we are forcing someone to do overtime, yes mostly the thing happen is creativity hamper होती है जिससे कि कंपनी का डाउनफॉल होता है. इसीलिए मींस क्रिएटिविटी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आई मैं गेस. एग्री Pranay, करता हूँ तो वर्षा Varsha से has a बट good point, but I मैं would एक like और to add पॉइंट one ऐड करना point चाहता हूँ that जस्ट there is a one हमने other अभी पता option कर of लिया कि work from मतलब home. मेंटल So हेल्थ बहुत work जरूरी from है home is और वर्क लाइफ बैलेंस भी helping बहुत people जरूरी है. to give So a I think work-life balance. तो मेरे one हिसाब of से the thing हर that I would ऑर्गेनाइजेशन में एक मेंटल हेल्थ बैलेंस के yes, लिए कमिटी होना चाहिए. absolutely. सारे ऑर्गेनाइजेशन टू I'm चेक also agree द with you. मेंटल one of the हेल्थ ऑफ एवरी पीपल We एंड have सर seen मुझे in ऐसा हेल्प लगता देम है टू we have मेंटेन ए seen in प्रॉपर वर्क South लाइफ बैलेंस.
Yes. Yes, I One want of to the add things that I that also like to जो जो पर्सन वर्क talk में about है that. उसकी उस जॉब से क्या एक्सपेक्टेशन है वो भी काफी मैटर करती है, क्योंकि वो ओवर टाइम करने के लिए कोई उसको फोर्स नहीं करता। अगर उस पर एक्सपेक्टेशन ज्यादा है तो उसको ओवर टाइम करना पड़ेगा, मतलब फ्रेंड्स अल्टीमेटली उसके लिए वर्क लाइफ मिस तो हो ही जाएगा। तो एक उसके और एटीट्यूड मुझे क्या है लगता है कि हमारे एक और डिस्कशन चीज को हम गाइस लोग मैं ऐड करना एक चाहूंगा, जैसे कि हम वर्क लाइफ स्टूडेंट के बैलेंस की बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं वर्क लाइफ एंड सोशल लाइफ की। तो हमें सोशल एग्जैक्टली लाइफ का भी देखना चाहिए कि व्हाट काइंड ऑफ सोशल लाइफ वी आर एक्सपेक्टिंग, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड वी आर वेरी मच एंगेज्ड इन आवर स्मार्टफोन्स। तो उसके चक्कर में और टेक्नोलॉजी के चक्कर में भी बहुत सारी चीजें हैं जो हैम्पर हो जाती है हमारी सोशल लाइफ में। हम सोशली कनेक्टेड रहते हैं बट फिजिकली वी आर नॉट इन कॉन्टेक्ट Yes, विद Pranay is पीपल a very अराउंड good point. सो या According to me, that's the only reason some people are going in private Yeah. sector and some people are going in public sector. Some people Public sector. want little work, but there is no आई थिंक so much work. And या in pub- यार जैसे कि कई लोग I सोचते हैं कि think गवर्नमेंट we जॉब में should वर्क लाइफ also- बैलेंस we should अच्छी होती है, पर we ये should कोई also जरूरी नहीं have है a- कि गवर्नमेंट जॉब में वर्क लाइफ बैलेंस हो। ये डिपेंड्स अपॉन अबाउट द जॉब, ऑन द जॉब आल्सो। नहीं नहीं, Yeah, Jay, गवर्नमेंट you are जॉब right. और प्राइवेट जॉब की चूज करने में मुझे जहां तक लगता है सबसे बड़ा पॉइंट लोग वर्क लाइफ बैलेंस का ही कंसीडर करते हैं, जहां तक Yes, मुझे लगता है। Yes. yes, क्योंकि Ajay is गवर्नमेंट की right. लॉ But comparatively जहाँ पे to वर्क लाइफ private बैलेंस sector, बहुत ही अच्छा है। public sector is having good work-life balance, according to मुझे me. ऐसा लगता है कि अगर आप कोई भी जॉब करते हो, चाहे वो प्राइवेट जॉब है या गवर्नमेंट जॉब है, अगर आप यस्टरडे एक दिन पहले अपने डे को प्लान कर लें कि मेरा इतना वर्क टाइम है, मैं कुछ टाइम फैमिली को दूंगा या मैं कुछ टाइम अपनी हॉबी को दूंगा, और एट द एंड आप उसका 60% या 70% भी अचीव करते हैं, तो आपको एक सेटिस्फेक्शन रहेगा कि जो मैंने प्लान किया था वो कंप्लीट हुआ है। और आप जितनी भी आप लोगों ने पॉइंट्स रखे हैं वो सारे मैं सपोर्ट करता हूँ, बिलीव करता हूँ। उससे क्या होगा, हमारी इफिशियंसी इंक्रीज होगी और वर्क लाइफ बैलेंस चलता रहेगा। इससे एक बेटर सोसाइटी का Yes, I'm also I agree support with you. that. मुझे लगता है फ्रेंड्स हम बाउंड्री लोग सेट करना हमारे इज डिस्कशन वेरी का वेरी डायमेंशन थोड़ा इम्पोर्टेंट। स्टूडेंट के तरफ मोड़ना चाहिए। हम लोग स्टूडेंट के हिसाब से भी बात करना चाहिए, खाली वर्क मतलब कंपनी तो होता है पर Yeah. स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव में भी देखना I चाहिए। think Yeah, we can हमें also discuss expectation upon थोड़ा the mind में रखना चाहिए, solutions like कि हम solution point क्या of कर view पे भी सकते हैं। depend, अभी हाँ problems तो हमें दिख रही है, I think हमें solution भी discuss हाँ, करना चाहिए कि solution I solution क्या didn't है। agree with मैंने जो Zayomi सजेस्ट because किया था, according to me that plan हमें future वर्क plan लाइफ never बैलेंस के work. लिए एक कमेटी रहना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, जो सारे एम्प्लॉय के मेंटल हेल्थ को चेक करे और Yes, उनको I'm जैसे also कि जैसे I'm education agree में with you, CSR but I एक्टिविटीज think करवाते हैं, तो I think जैसे कि government उनको प्रोग्राम educational मेंटल हेल्थ एक institutes जो जरूरी होते हैं make a थोड़ी सी law बात वर्क लाइफ बैलेंस counseling का and हाईलाइट services। हुआ है, I क्योंकि think वर्क government should Actually, make a guys, law I about think it. we are वर्क फ्रॉम deviating से from the topic. हमारा topic था कि discussion regarding the is work-life balance a myth or not. We do not have to find the solution. I appreciate that we are trying to do that, but हमें question का answer ढूंढना है कि क्या ऐसा ये वर्क लाइफ बैलेंस एक मिथ है या फिर नहीं है, ऐसा सिर्फ लोगों की मेंटालिटी है, ये हमें देखना है। तो आई थिंक Yes. वी शुड No, प्रोसीड no, विद we द are डिस्कशन exactly ऑन Pranay दिस। is doing the correct. same. No, doesn't. बट वो एक dimension है ना उस चीज का, But Yeah, तो exactly. we I can agree with discuss your but upon if that। we find the solution, then we can satisfy like work-life balance is not a myth. Okay, okay, Because yes. Ideally, it if can be it's not, 100%, but it can also be 50 to 60% in each life. And देखो a अगर disciplined जॉब way, you हैप्टिक can है, achieve that. स्ट्रेसफुल है, तो जॉब कितने भी घंटे वो स्ट्रेसफुल रहेगा तो अल्टीमेटली उसकी वर्क लाइफ बैलेंस मुझे तो लगता जाएगी। है सारे ऑर्गेनाइजेशन में एक मेंटल हेल्थ रिलेटेड एक Yes, बॉडी रहना Yes. चाहिए और Yeah. उसको उसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट को लॉ एनफोर्स करना चाहिए कि जैसे कि अब every हमारे Yes, one of education the में भी things होते जैसे कि हैं हम लोग देख काउंसलिंग रहे हैं सर्विसेज होते हैं, वैसे ही ऐसा जॉब में या कंपनीज में ऐसा कुछ ऑर्गेनाइजेशन सेट करना चाहिए, जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में काउंसलिंग सर्विसेज होते yeah, हैं, Varsha is correct. where I we can satisfy with it. We communicate। should have counseling sessions in work or work culture only, in where person can ask like how I can balance this, and if there is a very high work pressure, then company should give a flexible deadline Yes. so that the deadline pressure should be less. एक्चुअली क्लियर Yeah, कम्युनिकेशन जैसे से कि कोई भी yeah, also I प्रॉब्लम हो think वो सॉल्व also की I जा think we सकती है। should एक plan चीज for है जो तो वर्क clear लाइफ बैलेंस communication जैसे में कि मतलब बहुत डिफर जैसे कि कर जो देती gig है workers एक वर्क एनवायरनमेंट को दूसरे एनवायरनमेंट से, इज दैट कुछ कंपनीज की जो पॉलिसीज होती है उसमें एचआर डिपार्टमेंट जो होता है, दे ऑर्गेनाइज अ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज काइंड ऑफ सेशन yes in Yeah. the middle of the like year or in the middle of the between 2 or 3 मैं months, so एग्री that करता हूँ things प्रणय से, impact वो very much. सुबह आके I'm वो also agree योगा to सेशन भी I'm also करवाते agree हैं, to उससे because काफी Yes. बेनिफिट अगर होता है yes एम्प्लॉइज को पूरा जैसे डे कि जैसे काम करने में।
और I'm जैसे also कि agree मैं with कभी ऐड you. कभी करना ये चाहूंगा, होता है जैसे कि कि गिग ट्रिप वर्कर्स या स्पॉन्सर फ्रीलांसर होते हैं, कल्चरल उन लोग फेस्टिवल्स वगैरह स्पॉन्सर्ड रहेगा कंपनीज कभी तो भी जॉब से निकाल देती है, तो उन लोगों के लिए भी एक एक्ट होना चाहिए, गवर्नमेंट कुछ एक्ट लेकर आना चाहिए, ताकि जो गिग वर्क से फ्रीलांसर होते हैं उन लोगों की वर्क लाइफ बैलेंस भी अच्छी रहेगा। जैसे कोविड के हाँ, टाइम में जिसकी काफी जॉब में सारे रिस्क लोगों का इन्वॉल्व है। ले ऑफ Ajay, हो गया था, according तो to me, उनपे I would मेंटली like to बहुत add one प्रेशर point. हुआ। Like government gives a yojana like Rojgar Yojana, which is helping people to get प्राइम मिनिस्टर more रोजगार jobs. योजना, yes. Prime Minister Rojgar Yojana. So it is, yeah, your point is very correct, and Pranay is has a very good point. There should be a fun party, and there Yes. should be 2 days off or some off for a work person. Like, so we should have this. मुझे लग यस आई एम आल्सो एग्री विथ यू बिकॉज हम लोग वो दूसरी चीज करते रहेंगे तो हमारा माइंड डाइवर्ट होगा कहीं ना कहीं, तो उसके लिए ज्यादा स्ट्रेसफुल नहीं होगा। अगर हम इस काम में स्ट्रेसफुल हो जाते हैं तो कुछ टाइम के लिए माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आई थिंक वो भी स्ट्रेस रिलीज हो आई जाएगा। ऑल्सो या एग्री कि जो कुछ वर्कर्स होते एक्स्ट्रा हैं उनके लिए करिकुलर प्रॉपर एक्टिविटीज टाइम हैं शिफ्ट वो होना भी चाहिए, वहां पर अरेंज शेड्यूल करनी में चाहिए। मेंशन किया होना चाहिए, शेड्यूल मेंशन किया होना चाहिए कि प्रॉपर टाइम शिफ्ट कब से कब किसकी शिफ्ट कब है, ये तो उनके लिए थोड़ा इजी रहे, उनके लिए बैलेंस करने के लिए थोड़ा इसके इजी। आई अलावा थिंक आई दैट ऑल्सो एग्री कि कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी ऐड होनी चाहिए, जैसे आप सबने कहा। और आई ऑल्सो थिंक कि कुछ मेडिटेशन सेशंस भी अरेंज होने यस चाहिए, जिससे थोड़ा क्लैरिटी ऑफ थॉट्स भी आए या लोगों के दिमाग Yeah. में, यस क्योंकि Yes. इससे बहुत अगर फर्क जो पड़ता है। टीम बनाई गई है किसी प्रोजेक्ट के लिए उसके बीच कम्युनिकेशन अच्छा होगा, तो जो टीम के मेंबर्स हैं वो आपस में एक दूसरे से ज्यादा कनेक्ट हो पाएंगे, तो मुझे यस ऐसा लगता है कि उससे उनका स्ट्रेस और कम होगा। तो एक आई गुड एम आल्सो कम्युनिकेशन वो लोग नीडेड है यस वो आई एम लोग आल्सो आपस में मैनेज आई कर एम सकते हैं, आल्सो अपनी जॉब की अपनी यस शिफ्ट यस को यस मैनेज कर सकते हैं, ताकि जो अपनी Yeah. वर्क यस लाइफ यस बैलेंस यस को अच्छा कर सके। Yeah, हाँ, people ये with हम good हाँ communication I'm skills also will agree have with him. more the one thing that HR departments balance. can do is check is keep on check on the employees, उनसे बात करते रहे, and they can keep taking the feedbacks of the employees, how they are feeling in the work environment, how they are So feeling in yes, the office, so उनकी best सोशल लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है, या फिर अगर इनका चेक रहेगा तो they can implement this improvement of the work life balance also. Yeah, Pranay has a very good so point. I basically would there like to should add be one point that if some person is not able to do work in that line, then HR should not remove that person. Instead of this, HR should ask like what is the problem and how can I fix that? And if then also if it is not working, then HR Guys, should take I next step. think we या had आई एग्री विद यू हर्षित, जैसे कई discussed many कंपनीज होती है things. कि वो लोग एम्प्लॉय को हायर कर लेते हैं, लेकिन कुछ फॉल्ट की कुछ एक की मिसबिहेवियर या कुछ प्रकार से कुछ फॉल्ट की वजह से उनको जॉब से निकाल भी देते हैं, तो ये उनके लिए एक अच्छा नहीं होता है। हाँ गाइस, नहीं मेरे ये हिसाब पॉइंट से इतना हमने रिलेवेंट है इनफ नहीं। देखो डिस्कशन कर लिया है, तो ये कोई भी हम कंपनी लोग सब move प्रॉफिट करने बनाने के के लिए लिए कि काम करती है, मिथ है ठीक या है। नहीं, तो Yes, I मेरे हिसाब also से agree with कर लेना चाहिए। Branch. yes but मुझे yes I मुझे also लगता है agree कि with हम लोग इस Nicole that every companies work on the profit only. Though yes if we yes are doing just a small mistake and they are just terminating you, that is a wrong thing. But if you so are वेरी keep गुड, doing the bad work best and they are आई keeping you in the I company, that also is agree also with Nicole, not. but Yeah. according to me, profit comes with if work culture but and other, if your surrounding is very good. Yeah. If नहीं surrounding हम is क्या good, कर रहे we हैं कि can नहीं, वर्क लाइफ एक्सट्रीम बैलेंस मेजर के नहीं अंदर लेना चाहिए, प्रेशर ही एक्सट्रीम ना मेजर डाले, कोई लेंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ना प्रॉफिट भी ले, वो जरूरी गलत है है, ना। we मतलब can प्रेशर make आएगा ही, solutions उसी पे like ही this काम that करना रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आएगी। अगर मैनेज कोई करके I वर्क think लाइफ को Nicole is कैसे trying मैनेज to करते say हैं, कि दैट एक्सट्रीम इज मेजर नहीं लेना चाहिए, yes उसके कुछ तो मिडिल ग्राउंड ढूंढना मुझे चाहिए। लगता है इसका सॉल्यूशन ये हो या सकता है कि अगर कोई ग्रुप में किसी एक को चूक हो जाए तो हम लोग और ग्रुप मेंबर्स भी उनको हेल्प कर सकते हैं, तो ये एक ये तो या सॉल्यूशन हो वही सकता बात है है कि इसके लिए। या एक पर्सन को बेटर ज्यादा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, स्किलफुल बेटर बना दिया कोऑर्डिनेशन जाए होगा तो जिससे वो मिस्टेक अच्छे ना से करे उसको अपने आप को और अपना मैनेज कर टाइम पाएंगे। टाइम मतलब कम टाइम में सोशल अपना एक्टिविटीज, वर्क अच्छे से कर जैसे पाए, निकुल जिनसे कह रहे उनके पास थे, फ्री टाइम रहे और सोशल अपने फैमिली एक्टिविटीज के साथ कुछ स्पेंड। कराना चाहिए, जैसे एम्प्लॉय गैदरिंग, उससे कुछ थॉट शेयरिंग होगा तो उनका मेंटल स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा। या जो yeah, एक्सपीरियंस if एम्प्लॉय है उनको हेल्प करना चाहिए, जो न्यू एम्प्लॉय है उनको इनकी हेल्प करनी चाहिए, ताकि जो कोई मिस्टेक वो कर नहीं सके, ताकि उनको कुछ yeah, एक्सपीरियंस मिल Ranjan, सके। Ajay, you are saying that point only. Like we should have counseling session and Yeah. fun party for this. आई थिंक मेरे हिसाब से अभी कंक्लूजन में हम पहुंच गए हैं, ये प्रूव करने के लिए कि मिथ है या नहीं। So, friends, let's conclude. I want to take the opportunity to conclude our discussion. So, as we had a good discussion and we reached to the conclusion that work-life balance is not a myth. It can be done by proper planning of the targets, and also to maintain a proper mental health in our organization. We should have any mental health body in the organization, and he should ensure that
he should take feedbacks from every employee. Is he or she is mentally stable or not, and they should conduct some social activities so that every employee should release their stress and work in a much effective manner. So we reach to the conclusion that it's not really a myth. Yeah. Okay. So before I Yeah. give you feedback, let me tell you, Ranjan, you are not to conclude on your own. Number one, because that observer will tell, and then only you will conclude. Okay. Otherwise, they will not accept it. So never say that, okay, now friends, we have reached to the end and let's conclude. Don't do that. Okay. And number two, Ranjan, you identified that your strength can be in conclusion. You identified that. और आपने pen और paper पे लिखते चले गए. You kept on jotting down and you snatched that opportunity and you concluded. Through this, I would like to tell each one of you sitting here that conclusion is the easiest pie. Easiest thing to score is conclusion, but for that you need to keep certain thing in mind. Number one, if you have decided that you will conclude the way Ranjan decided in the beginning कि यार conclusion मैं कर सकता हूँ और मैं करूंगा, तो उसने क्या किया, he was jotting down. I saw that he was jotting down the points, and others were also seeing that he is jotting down the points. And then such person who is jotting down the points from the very beginning is not normally accepted, for the conclusion. And if you have decided to conclude, then after 10-15 minutes start reducing the pace of your participation. बाकी लोग बोलने में लगे होंगे, आप थोड़ा सा चुप हो जाना और आप ऑब्जर्वर की तरफ कान लगा के बैठ जाना. आंख नहीं, ऑब्जर्वर को देखना नहीं होता है, आपको कान लगाना है ऑब्जर्वर की तरफ. द मोमेंट ही से conclude, you will jump. Okay friends, so I think I take opportunity to conclude. I tell you, when he says you to conclude, उस टाइम पे सारे लोग are in the flow of speaking. Everybody is in the flow of speaking, and if you have decided from the beginning that I want to conclude, then you have to only do two things. One, keep jotting down the points. Like अगर आपने point नहीं लिखे, तो somebody else will again start concluding because you missed some points. I will ask you कि अभी रंजन ने क्या क्या important point miss किए हैं. I'll ask you that also. But if you've decided to conclude, friends, make sure that you do not miss any point. Number one. Number two, आफ्टर सम टाइम आपको पता लग जाएगा कितनी देर का जीडी चल रहा है अंदर. नॉर्मली 15-20 मिनट चलता है. आपको उस दिन पता लग जाएगा कि साहब जीडी जो चल रहा है इतनी देर का चल रहा है. तो अगर सपोज 15 मिनट का जीडी चल रहा है, तो आफ्टर 10 मिनट्स स्टॉप स्पीकिंग, कान लगाओ. जैसे बोलता कंक्लूड, ओके फ्रेंड्स, सो आई थिंक नाउ वी शुड कंक्लूड. Others will not be. So like introduction के लिए everybody is pouncing, conclusion के लिए nobody will pounce. The reason is like they are already speaking. So that is point one. Now Ranjan concluded. Format is also, I mean, the conclusion he has done is good. I would like to ask each one of you whether Ranjan has missed some very important point which you discussed and you thought कि ये नहीं बोला इसने. Sir, sir, I would like to add one point in Ranjan, that work-life balance depends on person to person. Like for some person, work-life balance is not very important thing, and for other person, work-life balance is everything. Like peace of mind and giving time to family is everything. And for some person, hobbies and other things are very important. Okay, now Ranjan, अगर मैंने नहीं रोका होता तो हर्षित कंक्लूड दोबारा लगा हुआ था करने. आई डोंट नो यू ऑब्जर्व दैट और नॉट. लेकिन हर्षित का यही पॉइंट था जो उसको दोबारा कंक्लूड करने के लिए मोटिवेट कर रहा था कि इसने सारे पॉइंट नहीं बताए. अगर ये डिस्कशन हुआ है और इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपने मिस कर दिए, तो somebody else will conclude, और वो आपका भी मार्क्स गिराएगा, उसका भी गिराएगा, ग्रुप का भी गिराएगा. क्योंकि दो कंक्लूजन से सबको लॉस होता है. क्योंकि जिसने कंक्लूजन किया उसने इंपॉर्टेंट पॉइंट छोड़ दिया, उसके भी नंबर गए. अदरवाइज ऑब्जर्वर को पता नहीं है. और हर्षित के इसलिए ये कि तरीका गलत है दोबारा कंक्लूजन का, और ग्रुप के इसलिए ये कि ये कैसा हुआ यार, दो दो कंक्लूजन कर रहे हैं, तो सबको लॉस होता है उसमें. तो इसलिए कंक्लूजन आप केयरफुली लें. दैट इज अ पॉइंट. अब मैं इंडिविजुअली पहले आपको फीडबैक दे दूं. देखो, अजय तो ऑलरेडी प्रैक्टिस अजय का अच्छा है और अजय अच्छा बोल भी लेता है. तो इस पूरे जीडी में अच्छा परफॉर्मेंस तो अजय का है, मतलब उसने पार्टिसिपेट किया है और अजय उसको इंप्रूव भी कर रहा है. अजय, मैंने आपको जीटी में भी फीडबैक दिया था एंड आई थिंक यू आर लिसनिंग टू दैट एंड यू आर डूइंग दैट. और इसमें से जो साहू है, साहू का भी प्रैक्टिस अच्छा है. साहू ने भी मॉर्निंग में जो मैंने डिस्कस किया, साहू आपने उसको इंप्लीमेंट किया, दैट इज ऑल्सो देयर. रंजन कैन स्पीक, रंजन पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है रिफाइनमेंट के लिए रंजन. सो रिफाइनमेंट हैज टू कम. बट कंक्लूजन का जो तो आपने फॉर्मेट पकड़ा है वो रंजन पकड़ के रखना, और बाकी लोग उससे सीखें कि हाउ इट कैन बी डन. Varsha is good in speaking. Varsha participated. She could talk also. But Varsha, try if you can introduce or conclude. The ratio of the girls will be like this only. Out of 7-8 students, there will be one girl candidate or two. So the moment you want to introduce or conclude, you get an edge, because other members will give you a way to speak
and you will be voice will be audible clearly. So you should take that opportunity and you should introduce. So girls have very high chance of scoring good in GDs, GTs and interviews, and you should take that you should take that advantage actually. So try to introduce, try to conclude, and बीच में जो आपने participate किया है, that is also good. Varsha, content enrichment is required. The kind of inputs which you give, that is required now. Communication part is okay, participation part is okay, introduction and conclusion, that is one thing you try, and content enrichment is required, which will come only with knowledge of the topics, what kind of topics we guys are discussing, how to participate. Start listening to others and start becoming interactive. Pranay has a good style to speak. Pranay जितना बोला वो अच्छे तरीके से बोल रहा था प्रणय, लेकिन प्रणय दो issues. Number one, your participation number of times you are participating is less. Number two, the kind of content you are discussing was not very forceful. You discussed couple of things, but they were more deviation actually. When I was listening to you, it was looking like you are deviating far away from the topic, and you should discuss very close to the topic. Sometime you are deviating. That is another negative feedback. So participate more. Style is good. बोलने का तरीका आपका अच्छा है. हर्षित पवार बोला भी है, पार्टिसिपेट भी किया है, तरीका भी अच्छा है. प्रोफेशनली बोलना है हर्षित. अभी ऐसा लग रहा है स्टूडेंट बात कर रहा है, लेकिन मेरे को ऐसा लगना चाहिए कि प्रोफेशनल बात कर रहा है. तो अभी वो स्टाइल आपको हर्षित प्रैक्टिस के साथ आएगा. इट इज लाइक मोर लाइक इफ यू आर स्पीकिंग, यू आर पार्टिसिपेटिंग, आई कैन से ही इज अ स्टूडेंट एक्चुअली. यू आर, बट दे आइडेंटिफाई प्रोफेशनल फ्रॉम स्टूडेंट्स. दैट इज टू बी डन. that has to be there. Nikul is also the same. Nikul, एक you need to be maintain more dynamic style in sitting. I mean, don't sit like a statue. You are to be more dynamic. You have to move your heads, you have to move your hands, you have to eyelids and nodding. तो ऐसा लगे कि you are regularly participating. Body also speak. You people know that. It is not that only our lips will speak. Body will also speak. When you do this kind of nodding, when you move your eyelids, when you move your everything, I mean, that dynamism has to be there. So don't sit like statue. That is for everyone. एंड निकुल, यू हैव टू पार्टिसिपेट मोर. कम बात किया है आपने जो बात करने का तरीका है वो ठीक है, उसमें कोई ट्रबल नहीं है. बात कम किया है. कंटेंट एनरिचमेंट इज रिक्वायर्ड. तो वो जो एक नॉर्मल सी नेगेटिव्स होते हैं वो आपके हैं. जियोमी, व्हाट इज योर नेम? एंड आई रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू टू एंटर विद योर नेम्स. जियोमी, व्हाट इज योर नेम? आपका नाम क्या है? जियोमी, एम आई ऑडिबल? जियोमी, RP341. One student is sitting who has not spoken. What is your name? White shirt. Okay, I think he's not aware or something. I don't know. Yeah, Xiaomi, what is your name? Okay, now let me do one thing. What we will do from today onward, whatever topic is discussed, at the end of the day, we'll give you the topic and the important points. Like यही topic discuss शुभ्या ने भी करना है आज, तो मैं अपने पॉइंट्स उसमें जोट डाउन कर दूंगा. शुभ्या अपने पॉइंट्स जोट डाउन करके फिर हम डॉक्यूमेंट जो ग्रुप टास्क भी हुआ है आज मॉर्निंग में और जीडी हुआ है वो हम आपको डिटेल प्रोवाइड कर देंगे, सो दैट यू जोट डाउन द पॉइंट्स. बट एज वी सेड, पॉइंट्स आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट, पार्टिसिपेशन इज मोर इंपॉर्टेंट. तो इस जीडी में अगर मेरे को पास करना होगा, मेनी ऑफ यू आर फर्स्ट टाइमर, आई शुड नॉट गिव द फीडबैक, बट अगर मेरे को करना होगा तो मैं अजय को पास कर दूंगा, इसको वर्षा को पास कर देंगे हम लोग, और रंजन और हर्षित जो हैं और प्रणय, ये तीनों बॉर्डर पे बैठे होंगे. तो रंजन, हर्षित, प्रणय, ये तीनों बॉर्डर पे हैं. हाँ, सत्या भी पास हो जाएगा. तो अजय, सत्या, वर्षा, ये लोग पास हो जाएंगे. बॉर्डर पे जो बैठे होंगे वो हर्षित होगा और रंजन होगा और सत्य पास हो गया और प्रणय होगा. ये बॉर्डर पे बैठे होंगे. बॉर्डर इन द सेंस वो ऑब्जर्वर पे डिपेंड करेगा, और उसको लगेगा तो वो उसको कर देगा, एंट्री मरवा देगा उसको, राइट. एंड जो निकुल है, निकुल नेगेटिव की तरफ रहेगा, एंड जियोमी बाहर निकल जाएगा. जियोमी ने पार्टिसिपेट नहीं किया. तो इस तरीके से है, ट्राई टू मतलब गेट मोर मार्क्स में 1-2 दिन के बाद आपको देना स्टार्ट करूंगा. सर क्या IOCL में जीटी और जीटी एलिमिनेटरी राउंड होता है क्या? अब ये समझो कि सबको चांस मिलेगा जीडी जीटी इंटरव्यू में जाने का, सबको चांस मिलता है. अब अगर कोई बिल्कुल सर ना एनी बोला, फीडबैक फॉर मी? हाँ, तुम नाम तो बताओ अपना. सर दीपांशु राजपूत. सर आई थिंक हाँ, इट इज शोइंग. नहीं नाम नहीं आ रहा ना तुम्हारा. दीपांशु है तो पूछ रहा था मैं. ओ सॉरी दीपांशु, सर मेरा अपना नाम से एंटर किया करो. और तुमने बोला नहीं है कुछ भी नहीं दीपांशु.
अभी तुम्हें बोलना स्टार्ट करना है। जी सर। तुम कुछ जी भी नहीं सर। बोले हो, तुम पूरे पार्टिसिपेशन सर तुमने ये मेरा किए नहीं है। फर्स्ट है सर, अभी फर्स्ट जीटी है। तो फिर फीडबैक तो तभी दे पाऊंगा ना जब बोलोगे आप। अभी तो इतना ही फीडबैक यस है सर। कि बोलना स्टार्ट करें आप। यस आप सर। बोलना स्टार्ट करें, और जो बाकियों को फीडबैक मिला है आपने वो भी सुन ही लिया होगा। जी सर। हाँ, तो उसको भी सुनो और बाकियों को भी देखो, ये तुम्हारे कंपटीटर हैं सारे, ये सब लोग जाने Sir, वाले हैं, जी सर। यही तुम्हें वहां मिलेंगे। तो अगर किसी का फीडबैक मिल रहा है कि साहब अजय अच्छा बोल रहा है, तो तुम्हें अजय को हराना है। अब मैं बोल रहा हूँ भाई रंजन से सीखो, तो रंजन को हराना है। और ऐसे ही हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनके वीडियोस तुम सुन रहे हो, तुम्हें पता है अपने कंपटीटर कौन है। आज तो ये चीज हो गई ना। अब यस सर। अब ऑनलाइन की वजह से क्या हो गया कि तुम्हें पता है भाई मेरी कंपटीशन इन लोगों से होनी है। एक दूसरे की स्ट्रेंथ वीकनेस भी पता होती है। जैसे प्लेयर्स खेलने से पहले दूसरों को भी देखते हैं। बैट्समैन देखता है कि वो बॉलर कैसा है, उसका नेगेटिव क्या है, उसका स्ट्रेंथ क्या है। वैसे तुम लोगों को भी देखना है कि साहब उसकी स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है, बाकी लोग कैसा कर रहे हैं। और अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम बाकी लोगों से अच्छा नहीं कर रहे हो, तो वैसे ही तुम्हें नंबर नहीं मिलेंगे। तो तुम्हें अपना भी करो, बाकियों का भी देखो, और उस उनसे भी सीखो। दैट इज होप। sir, हाँ हर्षित, हाँ। यस सर, थैंक यू सर। sir, Sir, if said like IUCL also have like schemes in order to have a work-life balance, which I have seen in site. So if I आई गिव should यू द add आंसर। this, आई गिव यू द आंसर ऑफ दिस टॉपिक। तो मैंने अभी डिस्कस करना है आपके साथ, अभी तो मैं फीडबैक दे रहा हूँ सर, आपको। हाँ जी। सर जीडी में एक बार कितनी बार एंटर करना ठीक होगा? मतलब जीडी में कितनी बार एवरेज तो एंटर इसका कोई करना? नंबर फिक्स तो नहीं है, लेकिन मेरे को लगता है मिनिमम 3 मैक्सिमम 5। जो मेरे को लगता है 15 मिनट की जीडी में, अगर जीडी okay, 15 मिनट की है तो मिनिमम 3 बार तो एंटर मारो। और मैं इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के अलावा बोल रहा हूँ। इंट्रोडक्शन okay, कंक्लूजन, Sir, एक you ही are आदमी को telling about. इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन दोनों नहीं करना चाहिए। एक आदमी को दोनों नहीं करना चाहिए, अनलेस सर को बोल ही नहीं रहा है तो तुम्हें कूदना ही पड़ेगा। लेकिन एक आदमी को दोनों नहीं करना चाहिए, और ऐसा भी ना लगे बहुत ज्यादा बोल रहे हो तुम। वो हम फीडबैक देते रहेंगे आपको कि तुम ज्यादा बोल रहे हो, कम बोल रहे हो। तो वो सर चीज आपको मेरा बताते जो रहेंगे हम। बोले सर वो सर वो रिफाइंड डबल सर कंक्लूजन का प्रॉब्लम कर अगर हो दीजिए। जाए तो, जैसे कि किसी ने कंक्लूड करा और पॉइंट्स नहीं बोले, तो सर हमको क्या करना चाहिए फिर? यार ये बड़ी अनकंफर्टेबल सी सिचुएशन होती है, क्योंकि हाँ ये सर, ये रिस्की हुआ होता है है बहुत क्योंकि ज्यादा। सर मेरे साथ हुआ था सर HRRL में, तो मैंने दोबारा कंक्लूड करा था, तो पता नहीं है वो रिजल्ट तो नहीं आया वो सर मैंने उसका, बताया पर कि वो ठीक नहीं होता। अगर तुम मेरे से पूछ रहे हो कि दोबारा कंक्लूजन ठीक है, तो आंसर है नहीं। वो ओके ठीक सर। नहीं होता। और चाहे तुम बहुत जबरदस्त भी कंक्लूजन कर दो, तब भी कई बार वो ऑब्जर्वर डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर ने कैसे लिया उसको। वो ऑब्जर्वर टू ऑब्जर्वर बात आ जाती है बस। तो ये ओके रिस्की होता है बहुत ज्यादा पढ़ना। सर ओके सर। पावर ग्रिड के जीडी में सर मुझे 20 में से 14.5 मार्क्स मिले थे, तो सर ये अच्छे हैं या बुरे? इसमें से 14.5, राइट? हाँ, 20 में से 14.5 मिले ये थे। एवरेज हैं, अबव एवरेज। ओके सर। मतलब 16 प्लस अच्छा है, 12 से कम बुरा है। और ओके। ये तुम्हारे 14.5 हैं, तो मतलब एवरेज से ऊपर है थोड़ा सा। हाँ, डिजिटल डेटॉक्स टॉपिक था तो काफी बोला था सर। डिजिटल, डिटॉक्स, हाँ डिजिटल डिजिटल डिटॉक्स, डिजिटल डिटॉक्स डिटॉक्स। मतलब कैसे बाहर निकल सकते हैं डिजिटल दुनिया से। डिजिटल डिटॉक्स करके पूछता है। डिटॉक्स नहीं, कुछ नाम बताओ ना पूरा क्या था। बस इतना ही नाम था सर, मैंने खुद पूछा मतलब उसे कि इसका क्या मीनिंग होता है, तो उसने बोला कि मैं क्यों बोलता हूँ। बाद में बताते मैंने नहीं सबका वो, सुना और अब बाद में। पूछना भी नहीं है तुम्हें। तुम्हें पूछना भी नहीं चाहिए, बट एनी हो विल डिस्कस दैट पर्टिकुलर थिंग्स। अब इसमें क्या था, कोई पूछ रहा था मेरे को कि एलिमिनेटिंग है कि नहीं। आईयूसीएल में आपको तीनों में जाने का मौका मिलेगा, चांस मिलेगा। लेकिन अगर कुछ भी नहीं बोले, जैसे अभी उसने प्रियांशु ने नहीं बोला, जरा भी नहीं बोला, तो वो 40% स्कोर करना होता है जीडी जीटी और इंटरव्यू में, मिनिमम 40%। कई ऑर्गेनाइजेशन उसको डिक्लेयर कर देती हैं, कई नहीं करती। अब आप ये मान के चलो हाइपोथेटिकली कि अगर कोई बच्चा है जिसके गेट में रैंक 1 है, मान लो हम्म, 85% सपोज वेटेज है गेट को और 15% इसको है, तो वो तो गेट के बेस पे ही उसका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। अब वो ये डिसाइड करता है कि मेरे को पार्टिसिपेट करना ही नहीं है, मेरे को जीडी जीटी में जाना ही नहीं, सिलेक्शन लेटर घर आ जाएगा। तो लेटर घर नहीं आएगा। हम्म, नंबर 2, अगर तुम्हारा रैंक 1 है, तुम अंदर चले भी गए, ना जीडी में बोले ना जीटी में बोले ना इंटरव्यू में भी गड़बड़ करके आ गए, रैंक 1 है, पास हो जाओगे, मेरे को नहीं लगता। इसलिए ये मान के जाना आप कि आपको 40% स्कोर करना है। हालांकि वो इस चीज को रिवील नहीं करते, आईयूसीएल ओपनली नहीं बोलता। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ओपनली बोलते हैं कि तुम्हें इतने परसेंट चाहिए, कुछ नहीं बोलते। और एचपीसीएल में अगर तुम्हारा जीडी में पास नहीं हो तो आगे, जीटी में पास नहीं हो तो इंटरव्यू में नहीं जा सकते। तो हर किसी का अपना फॉर्मेट है। आईयूसीएल का ये है कि तुम्हें जाना को तो देगा उस सब में, लेकिन 40% स्कोर लेने की ट्राई करना, दो दे डोंट रिवील इट, ये है। सर आईओसीएल के नोटिफिकेशन में सर ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि गेट का 85% है और जीडीजीटी का 5%, तो सर मार्क्स स्कीम
फिक्स ही है या वेरिएबल पता नहीं, वेरी कर सकते हैं? मेरे को आईयूसीएल का ही याद है कि वो शायद 85% वेटेज देता है गेट को। मैं लास्ट ईयर चेक था कर वो, लूंगा। इस साल का कुछ नहीं है। हाँ ठीक है, कोई बात मेंशन नहीं। नहीं है सर। तो हाँ अच्छा वो नहीं है मेंशन, तो आरटीआई में फिर मेंशन किए थे वो 85% और 15 पे, मतलब 10 पीआई का और 5% डीजेटी का लेकिन लास्ट तुम ईयर। मान के चलना, अभी इस सब चीज को छोड़ के ना तुम एक काम करो, ओके। तुम बेस्ट दो अपना, बस इतना करो। अभी इसका कोई मतलब नहीं है यार कितना परसेंट है, क्या है क्या नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे अभी निकुल बोल रहा है कि साहब मेरे 14.5 नंबर आए हैं, बताओ। तो जब भी जा रहे हो, सिलेक्शन नहीं हुआ चाहे, तो जब भी जा रहे हो अपना बेस्ट दे के आओ, पता तो लगे तुम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। कल को कोई और देखो तो तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा ना यार उस चीज का। तो अभी अपना 100% दे दो, होना होगा हो जाएगा, नहीं होना होगा नहीं होगा, लेकिन कम से कम नंबर लेने की ट्राई तो करो ना इसमें, अपना बेस्ट दे के आओ। हाँ सर नहीं ये सर, सर भावगीत कुछ में हो गया था फॉर्मेट सर मेरा में सिलेक्शन थोड़ा पहले। बता दीजिए, मतलब कैसे निकुल हो बोलने गया था के। तुम्हारा, राइट? हाँ सर, हाँ तो फिर हो क्या गया हुआ, था वो पहले ज्वाइन ही। कर गए वहाँ? सर मेडिकल में रिजेक्ट हो गया। हाँ तो चलो कोई नहीं, अच्छा है फिर तो, अच्छा गया है तुम्हारा, अभी इसमें भी अच्छा करो, डोंट वरी। अच्छा अब मैं सर इसका आंसर देता हूँ। हाँ कुछ ऐसे टॉपिक्स की लिस्ट मिल सकती है जिनको हम प्रिपेयर करें पहले से, उनकी बुलेट पॉइंट बना लें। जैसे एक टॉपिक ये हो गया, इस पे अब मैं बुलेट पॉइंट बना लेता हूँ, तो मुझे क्या बोलना चाहिए आगे। टॉपिक की जैसे लिस्ट एक तो दे ही रहे टॉपिक हैं, है। टॉपिक की लिस्ट तो सुबह जी। मैडम आपको दे ही रही हैं, जीडी के टॉपिक्स की भी, और जीटी की भी हमने काफी लिस्ट बना दी है। वो मैडम आपको शेयर भी कर देंगी, मैंने शायद कल शेयर किया भी था। लेकिन तैयारी कभी भी टॉपिक वाइज मत करना। जैसे वो बोल रहा है डिजिटल, वो कुछ टॉपिक आ गया था जिसका नॉलेज भी उसको निकुल डिटॉक्स। को नहीं था। हाँ तो टॉपिक कुछ भी आ सकता है, तैयारी ऐसी करो टॉपिक कुछ भी आ जाए, हमें कुछ करना है, ये तैयारी करके जाओगे तो सेफ फील करोगे। लेकिन अगर टॉपिक वाइज किया और वो टॉपिक कुछ और आ गया, तो तुम्हें लगेगा कि साहब ये क्या हो गया अभी। तो नो डाउट टॉपिक तुम काफी तैयार करेंगे और तुम्हें लिस्ट भी मिलेगी, वो तो हो जाएगा। लेकिन तैयारी ऐसी करनी कुछ भी हो जाए तो भाई साहब हम कुछ बोल पाए, इस स्ट्रेटेजी के साथ चलो। अच्छा सर अब मैं ग्रुप इसका, डिस्कशन खत्म होने के बाद जी सर। सर वो एक पेज देते हैं, उसमें हमें लिखना होता है सर, तो उसमें हमारी पॉइंट ही लिखने होते हैं या सारे ग्रुप के लिखने होते हैं सर, वो नहीं पता मुझे। नहीं नहीं, ग्रुप डिस्कशन के बाद जो तुम्हें पेज देता है कंक्लूजन के लिए, वो आईओसीएल में नहीं देता मेरी नॉलेज के हिसाब से। लेकिन अगर अच्छा देता भी है तो वो तुम्हें कंक्लूजन जो तुम्हें लगा वो अपने हिसाब से तुम्हें लिखना होता है, पूरे अच्छा। डिस्कशन का, अपना ही नहीं, सारा, सारे लोगों का ओके एंड में। ओके सर। क्योंकि तुम बताओ इस पॉइंट के ओके बारे में, फिर वो इंटरव्यू में लेके जाता है उस पेपर को, और इंटरव्यू में भी डिस्कस करता है आपके साथ। ओके सर। अब देखो ये जो टॉपिक था आपका वर्क लाइफ बैलेंस इज अ मिथ, इसका इंट्रोडक्शन बेस्ट क्या हो सकता है। और बाद में जो उसने बोला ना, जैसे हर्षित ने बोला कि भाई रंजन ने पॉइंट मिस कर दिए थे, वो इसलिए हुआ क्योंकि तुमने क्लासिफाई नहीं किया, इस चीज को कैटेगराइज नहीं किया शुरू में। मैं बताता हूँ फ्रेंड्स, द टॉपिक फॉर द डिस्कशन टुडे गिवन टू अस इज वर्क लाइफ बैलेंस इज अ मिथ। फ्रेंड्स आई partially agree with this particular statement. Now friends, we should I think discuss this entire topic in couple of categories. I strongly believe that work life balance depends upon individual, depends upon the organization, depends upon the profile at which you are working. So there are couple of couple of parameters on which this particular thing depends. We can also divide this topic into micro and a macro perspective. On micro perspective, in time scale, sometimes you can be very very busy for, let's say, 1 month or 2 months, a project is there and you are very busy. At that time you cannot think of work life balance. But on a macro scale, let's say when you are working for many years in organization, on an average you may be enjoying work life balance. So friends, first we should define this term, what do we understand by work life balance, because for every individual the definition may be different. And then we should discuss this topic into micro and macro aspects, like on very small time scale what is work life balance, and on large time scale 10 years 20 years what is the meaning of that. We should also discuss this topic in terms of profession. Sometime a gynecologist, surgeon, he is to go even in the night to do the operation. Profession wise we should discuss it, friends. We should also discuss it as profile wise. Now if we join IOCL at entry level, we may not be that busy, but when we become director of IOCL we may be very very busy profile wise. We should also discuss it project wise, like some project has come and then we have to put a lot of effort on that. So there are so many parameters, friends, on which we have to discuss this topic. Now I open the house for discussion, and I invite all of you to give your opinion and points on this. तो आप क्लासिफिकेशन दो, जो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, वर्क लाइफ बैलेंस में कुछ फिर एग्जांपल्स पे आ जाना। अगर आपको अपना जो डिस्कशन है उसको स्ट्रांग बनाना है फ्रेंड्स, तो एग्जांपल दिया करो। एग्जांपल जैसे कैसे कि फ्रेंड्स लेट्स टॉक अबाउट अ प्रोफेशन नाउ। सपोज यू आर अ वेरी
यू नो यू आर अ डॉक्टर लेट अस से, और नाइट ड्यूटी है, अब कोई पेशेंट आ गया, पेशेंट की इमरजेंसी का केस है, तो हम तो ये बोलेंगे कि डॉक्टर कभी भी पूरी लाइफ वर्क लाइफ बैलेंस एंजॉय नहीं कर सकता, बिकॉज उसको रात को कभी भी उठ के जाना पड़ सकता है, और रात को उठ के जाना वर्क लाइफ बैलेंस अगर हम जैसे डिफाइन करेंगे उसके अगेंस्ट हो जाता है, तो इसका मतलब कि मेडिकल प्रोफेशन में वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है। बट आई बेग टू डिफर, because as I told you, work life balance for everyone is his own perception also for that. Similarly, if someone is head of the institute, he has most responsibility of that institute. Now let us say I am in educational institute and I am a teacher in educational institute, so after 5 o'clock my work is over and maybe I am with my family. But think of principal, suppose something happens in the school, some night में some चोरी वोरी कुछ हो जाए, तो फिर principal is to be told and then he is to come and then, so head of the institute also has more responsibility. जैसे से responsibilities बढ़ती जाएगी, जैसे से आपका चीजें बढ़ता जाएगा, तो आप ज्यादा से ज्यादा उन ड्यूटीज को फुलफिल करने लगोगे, और आप बोलोगे मेरे वर्क लाइफ बैलेंस हैम्पर हो रहा है, but it may not be true. If you ask that director, if you ask the principal, she may say no, it is not work life balance, it is something else. So we need to define it. माइक्रो स्केल पे आप बहुत बिजी हो गए, आप दिन रात काम कर रहे हो किसी प्रोजेक्ट पे, बट उसके बाद ऑन एन एवरेज पूरे साल तुम अच्छा तुम्हारे पास टाइम है, उसमें कोई ट्रबल नहीं. So it is not the quantity term in which we should discuss this topic, it is the quality also. It is not a quantity time, it is a quality time also we should discuss. When we are going for recreation, what is the quality of that? So this also we should discuss. तो इस तरीके से फ्रेंड्स अलग अलग डायमेंशंस हैं, उन पे डिस्कस करो, और मार्क्स तब अच्छे मिलते हैं जब तुम सारी डायमेंशंस को कवर कर लेते हो, राइट? सो ऑल फ्रॉम माय साइड, एनीथिंग यू वांट टू ऐड और टेल अस दिस? सर सर मैं जैसे कुछ जैसे कंक्लूजन में बोला था कि ये मिथ है या नहीं, तो इसमें हम वन साइड तो नहीं जा सकते सर, मिथ है या नहीं? तो आपने बोला ना कि मिथ तो नहीं है, लेकिन पार्शियली यस इसके एग्री कर रहे हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस होता भी है, नहीं भी होता है. वर्क लाइफ बैलेंस होता है, वर्क लाइफ बैलेंस कई बार नहीं भी होता. वर्क लाइफ बैलेंस मैक्रो यस स्केल पे होना चाहिए, नहीं तो तुम ह्यूमन बीइंग हो, मर जाओगे. क्या कभी ऐसा हो सकता है तुम 100% हमेशा प्रेशर में ही रहो? मर जाओगे भाई. कभी तो प्रेशर भी आएगा ना यार तुम्हारे ऊपर, तुम्हें 12 घंटे सर 20 घंटे भी काम करना पड़ेगा माइक्रो स्केल पे, तो मिथ हो गया वो उस टाइम पे. लेकिन अगर मैं बोलूं तुम अगले 10 साल तक इतने घंटे काम करोगे, तो तुम बोलोगे मर जाऊंगा मैं तो. मैक्रो स्केल पे तो भाई बैलेंस रिक्वायर्ड है, वी आर अ ह्यूमन बीइंग, बैलेंस इज रिक्वायर्ड. वर्क और लाइफ में बैलेंस होना जरूरी है और होना चाहिए भी, लेकिन मैक्रो स्केल पे, माइक्रो पे नहीं. माइक्रो स्केल में क्या होता है, मेजोरिटी जॉब्स अगर आप देखोगे फ्रेंड्स, प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर जो भी, मेजोरिटी जॉब्स अब इसमें पब्लिक और प्राइवेट मत डालना कभी भी, ये बता रहा हूँ. डिस्कशन के टाइम में कभी मत बोल देना कि प्राइवेट में नहीं होता है पब्लिक में होता है, वो गलत समझ जाएगा उस चीज को. और इंटरव्यू में तो कभी मत बोलना आईओसीएल इसलिए ज्वाइन करना है क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस है, ये फंस जाओगे. 2-3 चीजें कभी मत बोलना, जॉब सिक्योरिटी वर्क लाइफ बैलेंस की कभी मत बोलना. बात वही सच है, लेकिन तुम जस्टिफाई नहीं कर पाओगे कि वर्क लाइफ बैलेंस है क्या, जैसे अभी नहीं कर पा रहे हो. अभी माइक्रो स्केल ये वहां नहीं ना बता पाओगे तुम लोग, तो इसलिए तुमने बात बोलनी नहीं. तो इसका वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब क्या है भाई तुम्हारे लिए? सर मैं 9 बजे ऑफिस आऊंगा, 5 बजे घर जाऊंगा, जब घर चला गया तो मजे करूंगा, खेल लूंगा. अब आईओसीएल की एंट्री पे नहीं ना वो ये चीज मानेगा, बोलेगा हम क्या कर रहे हैं भाई, यहाँ 9 बजे तक इंटरव्यू ले रहे हैं, हमारा वर्क लाइफ बैलेंस कहाँ है फिर? डायरेक्टर साहब तो हमारे आधे दिन बाहर ही रहते हैं, उनका वर्क लाइफ बैलेंस कहाँ है? फिर तुम चुप हो जाओगे, फंस गए फिर वहां ट्रैप में आ गए. इसलिए तुमने टर्म यूज नहीं करने. पब्लिक प्राइवेट के झगड़े में कभी नहीं पड़ना इंटरव्यू में, जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि आजकल पब्लिक सेक्टर बोलता है कि हम प्राइवेट से ज्यादा एफिशिएंट काम करते हैं, हम उनके जितना ये करना है, तो तुम उस झगड़े में नहीं फंसोगे, राइट? हाँ जी, एनीथिंग एल्स? सर मैं पूछ रहा था सर, मेरे को उस रिफाइनमेंट की जरूरत है, बोले तो उस क्या बोलने की स्टाइल मतलब। सब चीजों में आपको इंप्रूव करना पड़ेगा रंजन. अभी अभी करते जाओ, प्रैक्टिस करो, इंप्रूवमेंट आ जाएगा. थोड़ा ज्यादा सर पार्टिसिपेट करोगे, डिस्कशन करोगे, पॉइंट्स बोलोगे, वो सारे ही आएगा रिफाइनमेंट. सर सर आईओसीएल का जो बायोडेटा फॉर्म भरना है ना सर, उसमें ऑप्शन दिया है हिंदी इंग्लिश या दोनों. तो सर मान लो दोनों कि मैं दोनों में कंफर्टेबल हूँ, तो दोनों चूज करता हूँ, तो मुझे फोर्स कर सकते हैं कि किसी एक लैंग्वेज में, या कॉम्बाइन चल सकता है सर? दोनों ठीक है दोनों सर. भर दो. ओके. सर like you said that talk professionally, तो सर मतलब कुछ प्रैक्टिस करनी चाहिए इसके लिए कि सिर्फ जीडी यहाँ से आ टॉपिक? जाएगा, इट विल कम हियर ओनली. प्रैक्टिस ही तो कर रहे हैं हम, और क्या कर रहे हैं? सी इफ यू वांट टू स्विम, यू हैव टू स्विम, दैट्स इट. प्रैक्टिस तो करनी पड़ती है ना तुम्हें, तो बोल बोल के आएगा ये हर्षित. इफ यू मीन टू से कि डू आई नीड टू स्टार्ट टेक सम कोर्स और समथिंग, नहीं, नथिंग. You need to talk with the people with whom you are going to talk actually.
in IUCL, Yes, sir. and this is the group. So talk with many people. That's it. और सर सर मतलब स्टार्टिंग में अगर बहुत सारे लोग एकदम से बोलना चाहते हैं, मतलब स्टार्ट करना चाहते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि किसी और ने कर दिया और मैंने भी कर दिया, तो सर इस पॉइंट पे क्या करना चाहिए? इस पे जो पहले बोलना स्टार्ट करता है और स्पीड से बोल जाता है वो ले जाता है बाजी, दूसरे के नंबर कट जाते हैं. यू शुड बी द फर्स्ट वन एंड यू शुड बी द फास्टेस्ट वन. बी द फर्स्ट, बी द फास्टेस्ट. दैट्स इट. Okay.